सो कल हमने शुरुआत करी थी. सो व्हाट इज़ द नॉन ट्रेडिशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग, एंड what is the limitation of traditional machining, that it can be used only for the material which is like where workpiece is softer as compared to your tool. But there are some material like where workpiece is harder. So in that case we cannot use the traditional machining. So where in that case we need to use the non-traditional machining. Non-conventional. Yes, like ceramics and composites. So because these are very hard and they cannot be machined with the traditional machining process, like your lathe and boring and drilling machining process. So for such kind of material we have to go for the non-traditional machining process, and it has specific application in the field of automotive, aerospace, uh, electronic industry. बच्चे ये बोल रहे थे, बच्चे कल भी मुझे बोलते कहते कि सर एक सब्जेक्ट तो ये करा गए हैं। मैं कल बच्चों को फ़ोन किया ना, मैं बीटेक सेकंड ईयर के, तो वो मुझे बता के एक दो सब्जेक्ट तो ये करा गए हैं और बाकी सब्जेक्ट पता नेक्स्ट नहीं वीक से कर देंगे. और बच्चे ऐसे भी बोल रहे हैं, कहते हैं सर फिर ऐड करके क्या फ़ायदा, हमें टेट नोट ही भेज देना, हम अपने आप ही पढ़ लेंगे बीटेक सेकंड ईयर। कहना और है आज अगर मैं ऑटो कार्ड पढ़ाऊँगा ना, बाकी बच्चे बोल रहे हैं तुम क्योंकि अभी तो ऑटो कार्ड का इस सेमेस्टर का है ही नहीं, पिछले बार सेमेस्टर में पढ़ लिया है। कोई बात नहीं, अभी तो कराओ बच्चे आज. कहेंगे फिर बाकी करने तो को क्या तुम बढ़ाते होंगे थर्ड ईयर को? तुम आज तो कराओ फिर देखते हैं. ठीक है, लेकिन मैं बाकी करने को बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज तो कराओ फिर देखते हैं सोल्यूशन. ओके. सो so and based upon this like we can classify the process in traditional machining and non-traditional machining, and the limitations of conventional machining method, which I told you yesterday, that one of the disadvantages is increased workpiece hardness. Second one, rapid improvement in the properties of material like hardness, strength. So we cannot use this material on conventional machining method. Require much superior quality of tool materials. Tool material hardness should be greater than the workpiece hardness. So these are limitations with the conventional machining. Now, what is the need for development of non-traditional machining? So it is just like again very high hardness and strength of the material, the workpiece too flexible or slender to support the cutting or grinding force, the shape of the part is complex such as internal and external profile or small diameter holes, surface finish or tolerance better than those obtainable conventional process, temperature rise or residual stress in the workpiece are undesirable in conventional machining. Conventional machining involves the direct contact of tool and workpiece, whereas unconventional machining does not require direct contact of tool and workpiece. See, when in your final examination, there must be a question at least for 10 marks, which is about like what is the limitation of conventional machining or what is the need of non-traditional machining. So answer is same. So this is this would be your 10 marks question, or you can say advantage of non-conventional machining. So which are the disadvantages of the conventional machining? Same are the advantage of the non-conventional machining, like high accuracy and surface finish, less or no wear, tool life is more, and no doubt quieter in operation, less environmental hazards. So these are the advantage. Like which are the disadvantage of conventional machining? Same are the advantage of the non-conventional machining processes. Now this is important one. Now what are the product requirements? Like in which case we should go for the non-traditional or non-conventional machining. Ajaj, can you read these points? Yes, sir. Please read these points. Product requirement: complex shapes, Yes. machining in Yes. accessible areas, Yes, complex shapes. low tolerance, Ajaj, 0.01 mm. Ajaj, wait. Yes, sir. Complex shapes. What do you mean by complex shapes? Like, for example, if you talk Sir, about जो a से lathe machine, सर in lathe machine you can go for either for circular. बनाना होता है तो सर वो शेप जो हेलो हाँ, yes.
सर वैसा शेप जो कि सर हमारा कन्वेंशनल मशीनिंग पे नहीं होता है पॉसिबल, उसे हम कॉम्प्लेक्स शेप कहते हैं। जैसे कि सर किसी चीज में हमें ये काटना होता है, 30 स्लॉट्स काटने होते हैं, तो बेटे सिमिलरली कभी कभी हाँ कॉम्प्लेक्स यस, शेप। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल लेथ मशीन है, लेथ मशीन के ऊपर आइदर यू कैन गो फॉर यस सर, द स्क्वायर वन, रेक्टेंगुलर वन, और you can go for the यस सर, circular one. But what about the other complex सर्कुलर shapes? वन। You cannot go on the lathe machine. Similarly for drilling machine, so they have the limitations. You can go for particular नहीं सर, type और of ड्रिल shapes. मशीन, ड्रिल मशीन, So complex shapes you have to go for the non-traditional like non-traditional नॉट, machining. I will show you the pictures in the next slide. Next one is, यस सर, what is next one? मशीनिंग इन एक्सेसिबल एरियाज। Yes, machining in inaccessible areas. For example, you have to cut some groove, internal grooves, or internal grooves with some यस सर, kind of curves in it. So you cannot go for these kind of machining with a conventional machining. Then next one is the low यस सर, tolerance. There is a limitation in the conventional machining process. Either even if you will go for like very low speed or optimum speed, you cannot go beyond certain tolerance. So for the very good tolerance अच्छा, range, you have to go for the conventional machining process, because in most of the cases there is a no direct contact between the tool and the workpiece. क्योंकि नॉन नॉट कन्वेंशनल पीस। मशीनिंग में क्या होता है कि टूल का और वर्क पीस का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, और बिकॉज ऑफ दैट क्या व्हाट इज़ एडवांटेज, इस वजह से हमारा क्या होता है कि जो हमें हाई टॉलरेंस फिनिश वी हाई कैन प्रेस, अचीव विद दिस। एंड नेक्स्ट वन इज़ द बेटर सरफेस इंटेग्रिटी, यानी कि जो हमारे सरफेस डिफेक्ट हैं वो क्या होंगे, इसमें कम होंगे। देन हाई सरफेस फिनिश, हाई सरफेस फिनिश, हाँ, हाई सरफेस फिनिश मीन्स यू कैन अचीव सरफेस फिनिश अप टू नैनो लेवल। आप कन्वेंशनल मशीनिंग में मैक्सिमम अप टू माइक्रोन लेवल तक जा सकते हो, बट विद दिस काइंड ऑफ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग यू कैन गो अप टू द नैनो लेवल। आपको सरफेस फिनिश मालूम है क्या होता है? हाँ जी, एवरीवन यू नो अबाउट सरफेस फिनिश? सर। हाँ जी, यस सर, यस, Yes, sir. रुपेश कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज सरफेस फिनिश? यस सर। हाँ जी, एक्सप्लेन करो। सर सरफेस फिनिशिंग है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अनवांटेड मटेरियल को हटा करके हम अपने डिजायर शेप का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नहीं, वो तो आपका सरफेस फिनिश, पर सरफेस फिनिश इटसेल्फ क्या है? मैं ये कहता हूँ कि मान लो एक मटेरियल पीस, वर्क पीस है, और उस मटेरियल वर्क Yes. पीस की सरफेस फिनिश जो है, व्हाट यू मीन बाय दैट सरफेस फिनिश? सर सरफेस फिनिश का मतलब ये होता है कि जितने भी पीक्स एंड वैलीज हैं जो सरफेस पे होते हैं उसे रिमूव करना। यस यस, परफेक्टली ऑल राइट, परफेक्टली राइट। बेसिकली क्या होता है, जो आप रॉ मटेरियल देखते हैं वो क्या होता है, वो बहुत मतलब वो ब्राइट नहीं होता, रफ होता है। क्यों रफ होता है? बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, ग्रेन साइज, जो ग्रेन साइज है उसमें पीक्स होते हैं और क्रेस्ट होते हैं। हेलो, हाँ सर। हाँ, जैसे जो हमारे जो जितने भी मटेरियल्स हैं उसके सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, पीक्स होते हैं और क्रस्ट होते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है कि जब जो उसकी जो शाइनिंग होती है, जो उसका कलर होता है वो शेडी होता है। पर जब हम मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने में क्या करते हैं, हम उसके पीक्स को कम करते हुए जाते हैं। अब जैसे ही पीक्स कम होंगे तो अनइवन सरफेस क्या होगा, कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जब हम खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी में क्या करते हैं, जो ज़मीन होती है पहले ऊबड़ खाबड़ होती है ना, कहीं से ऊंची है कहीं से नीची है, तो हम क्या करते हैं, उसको प्लेन करते हैं, और प्लेन करने में हम लोग क्या करते हैं, उसके पीक्स है उसको कम करते हैं, राइट। तो सिमिलरली जब हम मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो उसके सरफेस के ऊपर जो अनइवन सरफेस है उसको रिमूव करते जाते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, आप कभी ना लेथ मशीन के ऊपर से टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करो, अगर आप बहुत हाई स्पीड के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, आपको वहाँ पर ना कुछ लाइंस दिखाई देंगी, कुछ अनइवन सरफेस दिखाई देगा अगर आप उसको टच भी करते हो तो। आई एम राइट और रॉन्ग? ग्रुप हेलो, ग्रुप के जैसा दिखता है। हाँ, वो क्यों होता है, रीज़न क्या है? बिकॉज जब हम हाई स्पीड के ऊपर करते हैं तो कुछ कर्व जो उसके ऊपर कुछ पीक से रह जाते हैं, पर जब आप स्लो स्पीड के ऊपर करते हैं तो वो जो पीक्स हैं वो उनको हम प्रॉपरली वहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि जो उनका सरफेस है वो इवन सरफेस हो जाता है। अच्छा, आपने एक चीज़ और नोट करी होगी
जब आप कोई जॉब हाई स्पीड के ऊपर बनाते हैं, हाई मेटेरियल रिमूवल रेट के ऊपर बनाते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उसकी शाइनिंग कम होती है। और जब आप उसी मटेरियल पीस को Yes. थोड़ा लेस मटेरियल रिमूवल रेट के ऊपर जब आप उसको मशीन करते हो तो ज़्यादा शाइन करता है, ऐसा है ना। तो वो शाइन करने का रीज़न क्या है कि Yes, उस sir. जितना अच्छा सरफेस फिनिश होगा उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, शाइन करेगा, राइट। Shine. अब आप देखो, जितने भी हमारे मशीनिंग प्रोसेस हैं वो सारे क्या हैं, बेसिक ऑपरेशंस हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं, होनिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, पॉलिशिंग हो गया। तो ये सारे वो प्रोसेस हैं जिनको करने के बाद हमारे जो वर्क मटेरियल है वो क्या करना शुरू करता है, वो शाइन करना शुरू कर देता है, राइट। सो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये पॉलिशिंग जो होता है जिसकी वजह से साइन आता है वो भी तो एक सरफेस फिनिशिंग का प्रोसेस है। कौन सा कह रहे हो, दोबारा बोलना। पॉलिशिंग विच वन? Polishing, sir. Lapping and polishing. हाँ, पॉलिशिंग प्रोसेस है। पॉलिशिंग प्रोसेस इज आल्सो कन्वेंशनल प्रोसेस। देखो मैं बता दूँ अगेन, पॉलिशिंग प्रोसेस में भी 2 टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक कन्वेंशनल और एक नॉन कन्वेंशनल, राइट। तो जो ग्राइंडिंग है और होनिंग है और इवन टम्बलिंग है, इवन योर बफिंग है, ये सारे आते हैं मशीनिंग प्रोसेस के अंदर। Lapping. लैपिंग इज आल्सो फिनिशिंग प्रोसेस, बट इट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। Yes, sir. आपने तो ये सारे प्रोसेस पढ़े होंगे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के अंदर। Yes, sir. पढ़ा हुआ. ओके ओके गुड, चलो आगे चलें। Yes, sir. ओके, सो आफ्टरवर्ड्स, Miniaturization. हाँ, मैच्योराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, एग्जाम्पल लैंडलाइन फ़ोन, मोबाइल, ओल्ड कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप। व्हाट यू मीन बाय मिनिचराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट? कैन एनीवन एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय मिनिचराइजेशन? No, sir. पहली बार सुन रहा हूँ ये word. एनीबडी? नहीं, नो आइडिया। आज से 20 ईयर बैक, इवन 25 ईयर बैक मोबाइल फ़ोन आते थे, किसी ने देखा है? यस सर। कैसे कैसे हुआ करते थे? मेरे को word. सर उसमें ये होता था, क्या कहते थे, तार लगे होते थे, तार लगे होते थे, ओके। और एंटीना वाला। एंटीना वाले सर फोन आते थे लंबे वाले. पहले ना ब्रिक साइज़ के फ़ोन हुआ करते थे, ब्रिक साइज़ के, और आलमोस्ट ब्रिक साइज़ तो नहीं कहूँगा, उससे हाफ वेट हुआ करता था उनका। और आज अगर आप मोबाइल देखो तो ऐसे मोबाइल फ़ोन्स भी आ गए हैं, दे आर हार्डली साइज़ ऑफ 2 इंचेस। Yes, sir. सो दिस इज़ मिनिचराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? मिनिचराइजेशन, यानी कि किसी चीज़ को छोटा करना। आपको मालूम है जब फर्स्ट कंप्यूटर बना था तो उसका जो साइज़ था वो आलमोस्ट 40 बाय 40 स्क्वायर फीट साइज़ में रखा हो गया था। और आज हमारा जो आप मोबाइल एक फ़ोन घर के बराबर देख, होता. हाँ जी, एक घर के बराबर था. एक घर के बराबर था, परफेक्टली। बट आज के डेट में यू हैव द मोबाइल फ़ोन, इट इज़ आल्सो ए लैपटॉप। और आप देखते हो कि 4 इंची का भी 4 इंची एंड्रॉयड फ़ोन आते हैं। अब साइज़ कितना छोटा हो गया है। सो दिस इज़ अ मिनिचराइजेशन। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर हम बात करें गियर्स की, आपके माइंड में गियर के नाम से पहला माइंड में क्या इंप्रेशन आता है? टीथ का सर, उस पर टीथ अगर हम लगता था. मैं आपको बोलूं कि आप गियर को इमेजिन करो तो आपके माइंड में कौन से गियर आते हैं? स्पर गियर. स्पर नहीं, दैट्स ट्रू, साइज ऑफ गियर्स। हाँ जी, मनोज। गियर तो बहुत था. मनोज, यस मनोज, आर यू हियरिंग मी? चलो, मनोज नहीं है तो रुपेश। यस सर। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मुझे बताओ गियर का साइज़, तो गियर के साइज़ से तुम्हारे माइंड में गियर की कौन सी पिक्चर आती है? साइकिल की सर ये। साइकिल के गियर की, राइट। और उसके अलावा जो, हाँ जी, और कोई? सर जो इसमें होते हैं ना, जो
खेत में ये गाड़ी लगी होती है, हाँ राइट। शुगर केन वाला मशीन। पहले जो रैट, पानी देने के गांव लिए। में पहले रैट हुआ करते थे, रैट यस जो पानी निकालने के लिए रैटरी चारा यूज़ मशीन करते थे। हेलो। यस सर। हाँ, जो गांव में पहले रैट निकालने के लिए बड़े बड़े गियर यूज़ करते थे। इवन जो हम शुगर केन का जूस निकालते हैं उसके लिए जो यूज़ करते हैं। सो आपके माइंड में पिक्चर में वो गियर्स आते हैं। और आप सब लोग यू हैव द रिस्ट वॉच, जो हमारी रिस्ट वॉच है, नॉट डिजिटल वन, प्रीवियस आवाज वन। कट हो- उस डिजिटल वॉच के अंदर भी गियर्स होते हैं। हेलो। यस सर। मैंने कहा जो आप लोग रिस्ट वॉच यूज़ करते हैं, नॉट अ डिजिटल, मैं डिजिटल वॉच की बात नहीं कर रहा, एनालॉग की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर भी गियर्स होते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ अ मिनिचराइजेशन, किसी चीज़ के साइज़ को छोटा कर देना, ओके सर। राइट। हाँ जी, यस एवरीवन। प्रियरंजन, एनी कंफ्यूजन? यस सर। राइट नाउ क्लियर। मिनिचराइजेशन का मतलब क्या था? उसके साइज़ को छोटा कर देना, स्मॉल साइज़ कर देना। किसी भी चीज को छोटा कर। हाँ, किसी भी चीज़ को छोटा कर देना, दैट इज़ नोन एज अ मिनिचराइजेशन। इसका मतलब सर मॉडिफिकेशन बोल सकते हैं सिंपली। हाँ जी। मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन नहीं, मॉडिफिकेशन नहीं। मान लो आपके पास कार है, यू हैव आईसी इंजन कार, पेट्रोलियम कार, साइज। और आपने उसको मॉडिफाई करके इलेक्ट्रिक कार बना दिया, तो क्या वो मिनिचराइजेशन है? नो। आप क्या करना है, आपने इसको छोटा वर्जन बनाना है, छोटा वर्जन। उसको क्या बोलते हैं? इसको मिनिचराइजेशन। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। हम जब रोबोट की बात करते हैं, मैं बोलता हूँ कि रोबोट, हमारे माइंड में सबसे पहले सोफिया का नाम आता है, राइट। यस सर। यस सर। और इवन आज के डेट में ऐसे रोबोट्स भी हैं जो हमारी जो ये हैं वेन्स हैं, इन वेन्स के अंदर जाते हैं, बॉडी को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और जो सारे डेटा है वो ट्रांसफ़र करते हैं। नाउ दिस इज़ अ मिनिचराइजेशन। नाउ रोबोट इज़ फ्लोटिंग इन योर बॉडी इटसेल्फ, सो दिस इज़ अ मिनिचराइजेशन, राइट। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मिनिचराइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी के साइज़ को छोटा कर देना, ठीक है। ओके, क्लियर। हाँ जी, किसी को अभी भी डाउट हो? आगे चलें। यस सर। ओके, देन हाई हाई। मटेरियल रिमूवल रेट। हाँ जी। हाई मटेरियल रिमूवल रेट नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट वन है हाई मटेरियल रिमूवल रेट। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हम हाई मटेरियल रिमूवल रेट अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाई प्रोडक्शन रेट विथ प्रोसेसिंग डिफ़िकल्ट टू मशीन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कन्वेंशनल मशीनिंग में जो हम प्रोसेसिंग रेट है हमें कम अचीव कर सकते हैं, बट इसके अंदर नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में हम हाई प्रोडक्शन रेट को अचीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर हम मास्क में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या होगी? कम होगी। प्रिसीजन एंड अल्ट्रा प्रिसीजन मशीनिंग, अगर आप यू हैव टू गो फॉर द हाईली प्रिसाइज मशीन्स, हाईली प्रिसाइज मशीनिंग ऑपरेशन, then you have to go for the non-conventional machining. Then next one is the require सर एक material. मिनट। हाँ जी, require material removal in the form of atoms और molecules. अगर आपको एटॉमिक लेवल के ऊपर अगर मेटल्स को, एटम्स को रिमूव करना है और ऐड करना है, then you have no choice, you have to go for the non-conventional machining process. So these are the requirement where you have to go, you have to have नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। अच्छा, वन मोर थिंग। अब मैंने अभी आपको एक रोबोटिक का एग्जांपल दिया कि हमारी बॉडी के अंदर भी रोबोट्स क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं। अब आप देखो, कुछ माइक्रोन का रोबोट है वो, और उसके कंपोनेंट तो नैनो लेवल के ऊपर होंगे। अगर आपको नैनो लेवल के कंपोनेंट प्रोड्यूस करने हैं तो यू कांट गो फॉर द कन्वेंशनल मशीनिंग, यू हैव टू गो फॉर द नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। आई होप नाउ यू विल हैव ए आइडिया कि किस केसेस में आपको नॉन कन्वेंशनल मेथड्स पे जाना पड़ेगा, राइट? यस, यस सर। ओके। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ जी रुपेश, बोलो। हेलो। हाँ रुपेश। हाँ सर, वो आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया
हाँ नाम बोलो बोलो कौन लो सा। कॉस्ट तब होगा जब प्रोडक्शन मास होगा, हाँ हाँ परफेक्टली। मास प्रोडक्शन। हाँ हाँ देखो दो इसमें दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ आपको। जैसे कि लेथ मशीन है, आप आज की बात करो, अगर हम कोई सीएनसी मशीन परचेज़ करते हैं, प्रोडक्शन सीएनसी मशीन, वो 10 लाख से कम नहीं आती, राइट। हाँ जी रुपेश, रुपेश आप कोई भी प्रोडक्शन लेते अगर सीएनसी मशीन परचेज़ करते हैं, वो 10 लाख से कम नहीं आती। आपको उसकी कॉस्ट रिकवर करने के लिए इतने कंपोनेंट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे कि आप 10 लाख रुपीस कॉस्ट को रिकवर करो। बट आज के डेट में अगर आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन की कॉस्ट जो है वो 6 to 7 लाख रुपीज़ है, और आप उसके ऊपर अगर कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड आप माइक्रो लेवल नैनो लेवल के कंपोनेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं ईडीएम के ऊपर, बट आप सिमिलरली सीएनसी मशीन के ऊपर सिर्फ माइक्रोन लेवल तक जा सकते हैं। अगर मान लो आपने कोई कंपोनेंट बनाया कन्वेंशनल मशीनिंग पे, सीएनसी मशीन पे, तो आपको अल्टीमेटली कोई ना कोई फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा। बट इसमें क्या है ईडीएम के ऊपर कि आप वन टाइम में ही जो नैनो लेवल के फिनिशिंग कंपोनेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट्स वाई जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में कम होती है एज़ कम्पेयर टू द कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, राइट। यस राइट, आगे चलें। ओके सो आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ शेप्स हैं, एंड दीज आर द शेप्स जो आप लोग सिर्फ कन्वेंशनल मशीनिंग पे अचीव कर सकते हैं। अब आप देखो जो फर्स्ट वन है, क्या अब आप ये कन्वेंशनल मशीनिंग के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या आप लेथ के ऊपर या फिर बोरिंग से या फिर टर्निंग से, आपको लगता है इज इट पॉसिबल? नो सर। So in that case you have to go for the electrochemical machining. इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग से हम इस तरह के कंपोनेंट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब सो दीज आर द सम एग्जांपल्स। अगर आपको इस तरह के मशीनिंग पे जाना है, ये जो इस तरह की कम्प्लेक्स शेप वर्क पीस हैं, इनकी मशीनिंग के लिए यू कैन सी हेयर यू हैव टू गो फॉर द दिस काइंड ऑफ प्रोसेस। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। आपने फ़िल्टर्स देखे हैं, फ़िल्टर देखे ना आपने? ये मीटिंग ख़त्म हो गई है, वही क्या टाइम हो गया? 10:05। ओके आई स्टार्ट, मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, अब ज्वाइन कर लो आप लोग, ठीक है। अभी हैं 10 मिनट हमारे पास, यही मीटिंग कंटिन्यू करते हैं फिर, ओके। इतने में हमारा लेक्चर पूरा हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि ये, अच्छा हाँ, मैं फ़िल्टर की बात कर रहा था। फ़िल्टर बेसिकली क्या होता है? हाँ जी, फ़िल्टर क्या होता है? कौन बताएगा फ़िल्टर? किस चीज का फिल्टर डिपेंड करता है ना। फ़िल्टर, सिंपल फ़िल्टर क्या होता है? पानी को साफ करने के लिए जो होता है, क्या होता है? जो इम्प्योरिटीज होते हैं हमारे, हाँ, फ़िल्टर का बेसिक पर्पस क्या होता है? इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, राइट। इम्प्योरिटीज को रिमूव करना। हाँ, जैसे मान लो मेरे पास इम्प्योरिटीज़ का साइज़ जो है वो 1 mm है, तो मेरे फ़िल्टर का साइज़ क्या होना चाहिए? उससे कम। उससे कम, राइट। और अगर मेरी जो इम्प्योरिटीज़ का साइज़ अगर 1 नैनोमीटर है तो क्या होगा? 1 नैनोमीटर से कम होना 1 चाहिए। नैनोमीटर से कम। पर कन्वेंशनल मशीनिंग में हम ऑलरेडी सिर्फ माइक्रोन में ही कर सकते हैं, तो क्या हम उससे कोई फ़िल्टर बना सकते हैं जो नैनो लेवल पे हो? नहीं, तो उस नहीं बना सकते ना। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे हमें नैनो लेवल के ऊपर कोई कंपोनेंट बनाना है, प्रोडक्ट बनाना है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? वी हैव टू गो फॉर नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, राइट। हाँ, ठीक है ना। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स वेयर यू हैव टू गो फॉर नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। नेक्स्ट वन,
इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एडवांस मशीनिंग प्रोसेस। इसी करेक्टरिस्टिक क्या है, देखो जो हमने एडवांटेज बताए थे ना, वो एडवांटेज इसी करेक्टरिस्टिक है। प्रोसेस परफॉर्मेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्क पीस। क्या मीनिंग हुआ इसका, देखो अभी मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, अगर आप कन्वेंशनल मशीनिंग की अगर आप बात करते हो तो कन्वेंशनल मशीनिंग में क्या होता है कि जो हमारा वर्क पीस है वो टूल से कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन थी, इम्पोर्टेंट पैरामीटर था। बट एडवांस मशीनिंग प्रोसेस में इनका आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस आर नॉट अ बैरियर। यहाँ पर वर्क पीस जो है वो टूल से क्या हो सकता है, हार्डर हो सकता है, राइट। ओके। नंबर 2, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क पीस मटेरियल। जो भी हमें मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उस मटेरियल की थर्मल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी विल यूज़ फॉर नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। इन जनरल लो MRR बट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं जब हमें बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज़ करने हो। कंपेरेटिवली हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ मशीन टूल एंड हाई ऑपरेटिंग। नो डाउट जो नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग सेटअप है इसकी इनिशियल कॉस्ट तो हाई है बट और इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई है, बट इसके साथ जो हमें कंपोनेंट मिलेंगे वो हाईली प्रिसीजन के मिलेंगे। अब आप कहोगे कि मैंने शुरू में बताया था कि इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, क्योंकि आप अगर किसी को कन्वेंशनल मशीनिंग पे कर रहे हो तो उसकी लिमिटेशन क्या है कि आप माइक्रोन लेवल के कंपोनेंट प्रोड्यूस कर सकते हो, उसके बाद आपको फिनिशिंग के लिए एक और प्रोसेस फॉलो करना होगा। बट एडवांटेज क्या है यहाँ पर कि आप वन टाइम में आप सारे ऑपरेशंस को, आप जो डिज़ायर्ड सरफेस फिनिश है आप उसको अचीव कर सकते हो। सो दिस इज़ द एडवांटेज विद दिस काइंड ऑफ मशीनिंग प्रोसेस। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एडवांस मशीनिंग। सर एक मिनट हाँ जी, हाँ बोलो एजाज बोलो। सर, इसके एडवांटेज में था ये मेरा कि मटेरियल रिमूवल रेट हाई बता रहा था, यहाँ पे सर लो हाँ बता मैं रहा उसी पे आ रहा हूँ। देखो यहाँ पर लो MRR, लो मटेरियल रिमूवल रेट का मीनिंग था क्या है, अगर आप इसको बफिंग प्रोसेस से कंपेयर करोगे, इसको पॉलिशिंग प्रोसेस से कंपेयर करोगे तो इसका मटेरियल रिमूवल रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। यस सर। अगर आप पॉलिशिंग प्रोसेस से कंपेयर करोगे तो ज़्यादा होगा। अगर आप इसको कंपेयर करोगे लेथ मशीन के प्रोसेस से तो इसका मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा होगा, कम होगा, सॉरी, राइट। कम हो। मेरी बात समझो आप, अगर आप एक बार जा रहे हो लेथ मशीन के ऊपर तो उसका मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा होगा। अगर आप जा रहे हो फिनिशिंग प्रोसेस पे तो इसका मटेरियल रिमूवल रेट क्या है, ज़्यादा है। बट अगर आप दोनों को कंबाइन करो, मान लो मुझे एक पर्टिकुलर सरफेस फिनिश का प्रोडक्ट चाहिए, आई हैव टू गो फॉर फर्स्ट कन्वेंशनल लेथ मशीन, दैन आई हैव टू गो फॉर द फिनिशिंग प्रोसेस। बट इन एडवांस मशीनिंग प्रोसेस एट वन टाइम आई कैन प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्रोडक्ट। So this is a basic difference between the two kind of machining process, right? यस सर। Okay. So now what are the unconventional machining process? कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। अब इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन चारों में इनफैक्ट वायर, इलेक्ट्रिकल, डिस्चार्ज मशीनिंग, इन चारों में क्या चीज़ कॉमन है? हाँ जी, इलेक्ट्रिकल सर। यस। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे मशीनिंग के लिए। देन उसके बाद लेज़र बीम मशीनिंग, लेज़र बीम में लेज़र यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक बीम को यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है वाटर जेट मशीनिंग, जहाँ पर हम वाटर को हाई वेलोसिटी के ऊपर यूज़ करेंगे, वाटर जेट मशीनिंग। अब्रेसिव जेट मशीनिंग, जहाँ पर हम क्या करेंगे, कैन एनीवन सजेस्ट अब व्हाट इज़ अब्रेसिव जेट मशीनिंग? हाँ जी बताओ। हाँ जी, आपकी आवाज़ कम आ रही, ज़ोर से बोलोगे।
व्हाट इज अब्रेसिव जेट मशीनिंग? आवाज़ काफ़ी कम आ रही है। हाँ हाँ, परफेक्ट। देखो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना, उन फाइन पार्टिकल्स को हम क्या करते हैं कि जिस मटेरियल को हमें रिमूव करना है उसके सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, और जैसे वो उसके सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे वो क्या करेंगे, उसके सरफेस के मटेरियल को इरोड कर देंगे। सो दैट इज़ द अब्रेसिव जेट मशीनिंग। इसमें क्या करते हैं हम, जो फाइन पार्टिकल्स हैं उनको एयर के साथ या वाटर के साथ या इवन गैसेस के साथ हम उसको किसी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। सो दैट इज़ योर अब्रेसिव जेट मशीनिंग। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में क्या होता है? हाँ जी यार, आपकी ना वॉइस कम आ रही है, कोई थोड़ा ज़ोर से बोलोगे? चलो, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में क्या होता है कि जो हमारी अल्ट्रासोनिक वो होती है, साउंड वेव्स होती हैं, हम उसकी हेल्प लेते हैं किसके लिए? मशीनिंग के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं? साउंड। हम साउंड की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हैं। सो दीज आर द अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस जिसको हम यूज़ करते हैं। किसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं? हाँ जी, किसके लिए यूज़ करते हैं इसको? हम यूज़ करते हैं मशीनिंग प्रोसेस के लिए, राइट?